संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रभुंकर पटिदियंकर दर्शन करुचे से पटिदिया होउछन्ति नारायण। पतित पावनंकर गुमुटरे स्वतंत्र पारंपरिक रंग द्वारा पारंपरिक चित्रकर सेवकंक गृह प्रस्तुत होइतिबा महाप्रभुंकर पटिदियंकु अनवर्षर समय रे श्रीमंदिर उपासनार परंपरा रही थाए। तेणु पतित पावनंकर दर्शन करि परिबा नहीं अनवसर समय रे तांक स्थान रे रहिचंते नारायण पटिदिय। तेणु ये अनवसर हेउछि प्रभुंकर विश्राम करिवार समय। प्रभु पुणी विश्राम करिवे निश्चित। से जदि मानवीय लीला करुचंती अनवसर समय रे विश्राम करिवार आवश्यकता रही। जेहेतु ज्वरर कथाटी उठे मन रे प्रश्न आसे महाप्रभु कौन सतरे तांकर ज्वर हुए? निश्चित पाखे महाप्रभुंकर ज्वर आसे। महाप्रभु एठी मनुष्य परि लीला करुछंती। तेणु ये तांकर मानव लीलार एक लीला होउछि महाप्रभुंकर अनवसर। देवस्नान पूर्णिमा परदिन ठारू नेत्र उत्सव पर्यंत जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ज्वर रे पीड़ित होई उपचार घेनुथिबारु भक्त मान को दर्शन दियंते नहीं। ए काल को आमे कहू अणसर बा अन्नवसर। स्नान यात्रा परे परे परंपरा अनुसार अन्नवसर नीति होता है। प्रसिद्ध पार्वण जेते विधि विधान अच्छी ताकू 6 भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथम है स्नान यात्रा। चुनरा सेवक आगमन कर सारी। ए सेवकंकर आगमनर अभिप्राय होछि प्रभुंकर प्रत्येक प्रतिदिनर सेवा को संपन्न करिबा पाई। ए मार्ग देकी समान को आसीबा को ही थाए। ए स्थान को समान को आसीबा को ही थाए। तेणु आसी पहुंची जाती तांकर सेवा समय हेबा क्षण। तेणु आम पार्वण कथा कहते महाप्रभुंकर रथ यात्रार अयम आरंभ हुए स्नान यात्रा। कारण प्रभु रथ यात्रा को आसिबे रथारूढ़ हेबे तांकर प्रथम यात्रा आरंभ कर दियंती स्नान रु। मुंडियाटी मारी चुनरा सेवक तांकर नीलचक्र निकट को जीवे। सेथिपाई आमे रथ को कहू स्नानर आरंभ। रथ यात्रा आ 15 दिन महाप्रभुंकर दिव्य लीलार समस्त कार्यक्रम बिना विज्ञापन विरति देखंतु केवल आपणकर प्रिय चैनल जय जगन्नाथ टीवी रे समस्त डीटीएच और केबुल रे जय जगन्नाथ टीवी उपलब्ध। ये अनवसर आज हूँ द्वितीय दिवस। अनवसर आज हूँ द्वितीय दिवस। ये अनवसर समय रे
ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି। କାଲି ଦିନ 11ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। କାଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯେଉଁଠି ଅଲାରନାଥ ଉପାସନା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେହି ମନ୍ଦିରରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ କାଲି 11ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ବଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାର୍ବଣର ଯେତେ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ମୋଟ ଭାବରେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନବସର, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ବିଜେ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା, ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ନାନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସରିବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଯିବେ ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଖାଁ ଖାଁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହବ ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସେଇ 6 ଭାଗରେ ଏ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଲିଛି ଅନବସର, ତୃତୀୟ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ, ଚତୁର୍ଥ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ, ସପ୍ତଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାଇଁ, ପଞ୍ଚମରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପୁଣି ଷଷ୍ଠରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 6ଟି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଔଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ 6ଟି ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ 6ର ସମାହାର ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସରିଯିବ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସରିଯାଏ, 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରେ ତାକୁ ନିଆଯିବ। 5 ହେବନି କି 7 ହେବନି, 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ସବାରି ହବ। ତେଣୁ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ବିଧି ଭିତରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଅଣସର ନୀତି ନାଇଁ। ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର, ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ନୀଳଚକ୍ର, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ନୀଳ କନ୍ଦର, ନୀଳ ପର୍ବତ, ନୀଳ ସାଗର, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ନୀଳାଚଳ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ, ନୀଳ ଚକ୍ର, ନୀଳ ଆକାଶ, ନୀଳ ସମାଗମ ବା ନୀଳର ସମାହାର ଏଠି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ବିଧି ପାଳିତ ହୁଏ ଅଣସର ନୀତିରେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଇକି ଆସିବେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ, ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଦୈତାପତି ମାନେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ରାହୁରେଖା ଚିତା ବାହାର କରି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି। ଦୈତାପତିଙ୍କର ବାଢ଼ଗ୍ରାହୀ ସମେତ ଭାଗାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଣସର ଗହରେ ଚାଲିଥାଏ। ତତ୍ପରେ ସେହି ରାହୁରେଖା ଏବଂ ଚିତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ମସ୍ତକରେ ଲାଗିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ଏବଂ ରାହୁରେଖା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅଣସର ଘର କଥା, ଅନବସର ନୀତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥତାର ଅନୁଭବ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ, ନିଶବ୍ଦ କୋଠରୀ, ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି।
ଅଲାରନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ଅନବସରର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଆମେ କହିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରକୁ ବିଜେ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପଟି ବା ମସ୍ତକର ଚିତା ରାହୁରେଖା ଉଲାଗି କରନ୍ତି ବାଡ଼ଗ୍ରାଇ ସମେତ ଭାଗାରୀ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶ ତାଟି ବେଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ସେବକମାନେ। ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଏକ ଚୋରା କବାଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ଏହି ବାଉଁଶ ତାଟିରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭିତର ପଟ ଭାଗରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୁହନ୍ତି, ବାହାର ଭାଗ ଏକ ଖଟ ରହିଥାଏ, ଖଟ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରକାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଟିଦିଅଙ୍କର ଉପାସନା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟିଦିଅଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ପଟିଦିଅ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପଟିଦିଅ ଭାବେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଟିଦିଅ ଭାବେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସନା ବା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦାରୁ ଦେବତାମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଆକୃତିର ନୁହେଁ। କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ସଦୃଶ୍ୟ ବା କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଆସରେ ବସିଥିବା ପରି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦିଅଁ ଚତୁଃହସ୍ତ ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କଳେବର ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁଃହସ୍ତରେ ସେ ଧରିଥାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ହଳ ଏବଂ ମଝି ବାଡ଼ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା। ହରିଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଧରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନ ହସ୍ତ ଦୁଇଟି ଥାଏ ବରଦା ମୁଦ୍ରାରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଚାରି ହାତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଧରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପଟ ଗାଢ଼ ଲାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ପଟିଦିଅଙ୍କର ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ବାସଗୃହରେ ହବିଷାନ୍ନ ପୂର୍ବକ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଏ ପଟିଦିଅଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେବାକୁ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ପଟିଦିଅ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଟୁଆର ଘଣ୍ଟ, ଛତ୍ରା, କାହାଳି ସହିତ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଟିଦିଅ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିବା ପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନ ନୀତି, ଗଜାନନ ବେଶ ସରିବା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ଅଣସର ଘରକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଟିଦିଅଙ୍କର ବିଜେ ହେଇଥାଏ। ଆଳତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କର୍ପୂର ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଳତି ସମୟର ଦର୍ଶନର ସବୁ ସମୟରେ ଆଳତି ହୋଇନଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଥାଏ ଆଳତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଳତି କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ପତିତ ପାବନ ଧ୍ୱଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଳତି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଳତୀର ପର୍ବ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଚୁନରା ସେବକ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନୀଳ ଚକ୍ର ବା ଦଧିନୌତି ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଶିକୁଳା ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି
गरुड़ଙ୍କୁ स्मरण करी माँ विमलाଙ୍କୁ स्मरण करी तांकर शिकुला मार्ग को आपणे नहीं था। एपटे भक्त माने मध्य तांकर शरणापन समर्पित शरण प्रभुंक पाखरे पसंती। प्रभु मु दियंक पाखरे ठाकुरंक पाखरे प्रभुंक पाखरे शरण पशिछि। शरणागत हेबा समर्पण हेबा मनोबलर दृढ़ता आसी थाए। मनरे केबे भय न थाए। मनोबल गोटे सदा बेले दृढ़ता आसी थाए जदि आपण समर्पण शरणागत भाव अंतर भितर मन भितर सदा सर्वदा रखि थांती। जो मान भी शरणापन समर्पित भाव रखि थांती सेमानक मनरे भय न थाए एवं सेमाने प्रबल धैर्यवान ही थांती। से अधैर्य ही न थांती। जो माने भी आश्रित ही जाती सेमानकर जो माने भी आश्रित ही जाती सेमानकर मनर बल मनर दृढ़ता आपे 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 प्रभुंक पाई आसी जाई था। प्रभुंक पाई आसी जाई था। तो जो प्रभुंक पाई आपे आपे मन बल दृढ़ हो जाए केवल शरणागत समर्पण द्वारा ही। सेतिपाई कुआ जाए सदा सर्वदा प्रभुंक पाखरे मनटी जेते बेले देइथिबे से मन संपूर्ण भावे महाप्रभुंकर पाई हेइथिबा दरकार। संपूर्ण समर्पण जो कुआ जाए नहीं तो आम देखुचे प्रभुंकर भक्त मानकर भावना को आम देखुचे किभली भाव में भक्त मानकर भावना प्रभुंक प्रति रही था। कहले आम शरीर भितर 6टी भल जिनिस 6टी मंद जिनिस अर्थात सौंदर्य वीर्य औधर्य गांभीर्य माधुर्य ऐश्वर्य 6टी भल कथा कौचे 6टी मंद मध्य काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। तेणु आम जिते शरणापन्न समर्पण हो जिबा मंद मंद भाव गुड़िक ये सब आपे आपे लोप पाई जाए। आपे आपे खराब मंद जिनिस आपे आपे काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य सब नियंत्रण को आसी जाती नाश जाती तांकर कौन प्रभाव शरीर भीतर पड़ न था। नहीं तेणु प्रभुंकर चली आम कहले अनवसर समय कथा कहते अनवसर महाप्रभु किभली भाव में रही स्वतंत्र भाव में महाप्रभुंकर आज हूँ द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस रे पट्टीदियों श्रीमंदिर रे उपासना वासुदेवंकर उपासना याज्ञसेनी भुवनेश्वरी मां उपासना नारायण उपासना। तेणु दारु देवता माने रत्न सिंहासन रे जो रूप में पूजा पाती पटचित्र गुड़िक से आकृतिर नुहे आम कहते स्वतंत्र भाव में चतुर्भुज बलभद्रंकर कलेबर श्वेत वर्ण कहीं बलभद्र होती धला रंग तांकर श्वेत वर्ण चतुहस्त तांकर बलभद्रंकर शंख चक्र गदा सहित हल कारण सी होती हलधर सुभद्रा होती हरिद्र वर्णा दुई हस्त पद्म धरी था ऊर्ध दुई हस्त निम्न दुई हस्तर अभय वरदा बा वरदा मुद्रा रे मांकर रही है एवं कालिया ठाकुरंकर रंग कला कला चित्रित जगन्नाथ चारि हतरे शंख चक्र गदा पद्म धरी था समस्त देवता पृष्ठपट गाढ़ लाली रंग होता है। पट्टीदियोंकर कथा आम कहूचे स्वतंत्र भाव में चित्र पाई धला रंग शंखरु प्रस्तुत होता बेले कला रंग निमंते पोलांग दीपर कला हिंगुलरू लाली हरितालरू हलदिया
और खंड नीलू नील रंग प्रस्तुत करा जाए स्वतंत्र भाव प्रस्तुत करती किए चित्रकर सेवक माने ये पटिदिय करने रंगर प्रस्तुति यही भाव में पारंपरिक रंग द्वारा चित्र करा जाए धड़ा शंखरू प्रस्तुत करेंगे नहीं कला रंग पोलांग दीपर कलारू से संग्रहित करेंगे हिंगुलू लाली रंग संग्रह करेंगे हरिताल हलदिया रंग संग्रह करेंगे एवं खंड नीलू नील रंग संग्रह प्रस्तुत करेंगे तेणु स्नान पूर्णिमा दिन गभीर राति बाईद बजे कहुई पटुआर आसो पटिदिय आसवे सेमती आसबे चित्रकार सेवकों घरे अणसर पट्टी गुड़ को मंदिर को विजय करने स्वतंत्र पटुआड़ कहीं आषाढ़ प्रतिपदार अमावास्या जाए आषाढ़ अमावास्या जाए केबेठू आषाढ़ प्रतिपदार अमावास्या जाए एक पक्ष व्यापी यही पट्टी देवता आगरे भोग बढ़ा जाए जो कह जाए पट्टिदिय उपासना श्रीमंदिर एवं अणसर घरे ठाकुर मानू पणा चकटा भोग आदि करा जाउथाय अणसर दारू दियंकर नीति संपूर्ण भावे भिन्न अलगा भोग मध्य अलगा वस्त्र मध्य अलगा पुष्पादि लागी मध्य अलगा नीति मध्य अलगा सबकिछि अलगा दारू दियंकर वर्तमान किंतु पट्टी दियंकर दारू दिय जो भली भाव में नीति तांकर ग्रहण करुले पट्टिदिय समस्त नीति को पट्टिदिय ग्रहण करी तेणु सी दारू ब्रह्म हेले ये पट्टी ब्रह्म बोली कह जाए भक्त मान से प्रभुंकर क्षेत्र को अनवसर समय रे आसंती प्रकृति जीए यही समय रे आसी थाए से ही प्रभुंकर प्रकृत बंधु भाव में रही थाए बाबाजी वैष्णव ठारू आरंभ करी साधु सन्थ मानक ठारू आरंभ करी भक्त मानक ठारू आरंभ करी प्रत्येक वर्गर भक्त पहुँची जाती श्रीक्षेत्र रे एई प्रभुंकर अनवसर बा अणसर समय मंदिर को जिबे निशब्द वर्तमान मंदिर भितर के उच्च स्वर रे वर्तमान कथा हेबेनी मंदिरर चतुर्पार्श्व कौन प्रकार शब्द करा जीव नहीं कौन प्रकार विभिन्न यांत्रिक जंत्र जो रही यांत्रिक व्यवस्था कौन प्रकार बाजिब ना आतशबाजी ठार आरंभ कौन प्रकार ना निशब्द मंदिर चतुर्पार्श्व तेणु ये हूँ जगन्नाथ प्रति भल पाइबा जगन्नाथ प्रति श्रद्धा विश्वास कथा घरे जमी जड़े किए असुस्थ रहिले आमे से घर पाखे कौन प्रकार शब्द न करू उच्च स्वर रे कथा न हो कारण असुस्थ लोकंकर टिके शांति दरकार विश्राम दरकार कि महाप्रभु जितेबाला मानवीय लीलार तांकर असुस्थ होती बोली सर्वसम्मुखें समस्त को जन देते मुझे बर्तमान क्या दर्शन देवी ना 15 दिन पर्यंत मुझे बर्तमान विश्राम करी से विश्राम समय रे भक्त माने महाप्रभुंकर दर्शन तो करें कहीं भी करें केवल तांकर श्रीअंग दैतापति सेवक माने तांकर सेवा शुश्रूषा पाई से तांकर उपस्थित होता से ताटी भितर को जाती अणसर घरे जाई महाप्रभुंकर सेवा शुश्रूषा करि तेणु भक्त मैंने आसती प्रभु द्वार देश में पहुँची श्रीमंदिर बेढ़ा परिक्रमा करी प्रभु टिके दुख प्रकाश करते प्रभु आपण असुस्थ होती आम मन भल लगुना आपण सुस्थ हो जातु शीघ्र सुस्थ हो जातु प्रभु पाखे ए प्रार्थना करती वर्तमान श्रीक्षेत्र को जो मैंने आगमन करती कौन सी अभिलाष मागिबा महाप्रभु पाखक आसी न था एवं जो मैंने आसी था तुंडरू केबे भी खसी न थाए निजर दुख कथा केवल मुंडियाटी मारी प्रभु को कहते प्रभु शीघ्र आपण सुस्थ हो जातु आपण सुस्थ हो गला आमर सबू समाधान हो आपे आपे हो ये भावना रखि था किंतु प्रभुंकर आरोग्य कामना करि था से प्रभुंकर लीला ये मालाकृति पताका को आम देखुचे जो मालाकृति पताकार बांधिबार
प्रत्यय प्रतिदिन समय आसिले निर्दिष्ट समय न थाए केतेबेले पताका माला कुर्ती पताका बंधा जीव केतेबेले पतित पावन पताका बंधा जीव संपूर्ण भाव गोटे निर्दिष्ट समय कारण न थाए से प्रभु हाथ में से समय तेणु आम अनवसर कथा कहते किभली भाव कारण भक्तों मन भितर थाए वर्तमान महाप्रसाद कौन मिल मंदिर रे महाप्रभु तो ज्वरे अच्छा महाप्रभुंर ज्वर अवस्था कौन अन्न प्रसाद खाइबे एमती अनेक प्रश्न महाप्रभु को नहीं सन्देह घेरे रही था कि वास्तव में महाप्रसाद मिल कारण आम कहले दारुदियंकर दैनंदिन नीति जा हुए समस्त नीति पटिदियों को करा जाए अर्थात दारुदियों पाखे पणा चकटा भोग आदि करा जाउथुबा बेले पटिदियों निकट में अन्न भोग करा जाए गर्भगृह संलग्न दक्षिण घर सेवायत माने 7 गोटी चलती प्रतिमा आनी अणसर घर बाहर पटे खट जो रही से खट उपर रखते बलभद्रंकर आस्थान समीपरे राम नृसिंह और दोल गोविंद विग्रह रहे सुभद्रा समीपरे भूदेवी श्रीदेवी जगन्नाथ सम्मुखें मदन मोहन कृष्ण प्रतिमूर्ति यापर दिय मानक ठाकुर मान को सामंत पूजा पंडा पंचामृत स्नान बढ़ेबे ठाकुर को बल्लभ सर्पामणि ही करा जाई थाए समस्त दैनंदिन नीति भोग होता है यही समय अन्य दिन परी धूपरे मैलम होई न थाए मैलम होई न थाए प्रतिदिन जमिति अन्य दिन मानक देखिए महाप्रभुंकर जेते थर भोजन करेंगे सेते थर बेश मैलम सकाळ धूप कहतु मध्याह्न धूप कहतु संध्या धूप कहतु किंतु पटिदिय जेतेबेले उपासना चले समस्त दैनिक नीति भोग होता है यही समय अन्य दिन परी धूपरे मैलम होई न था पटिदिय एवं सेठारे थिबा चलंती विग्रहंकर रात्र बड़ सिंगार भोग परे पहुड़ पूर्व अणसर थिबा दारुदियों पाखे चकटा भोग होता है ज्वर हेबा परे श्रीजू मान को उपचार करने निमंते तांकर प्रिय सेवक आम कहते अंगलागी सेवक दैतापति सेवक अन्य सेवक माने ठाकुर मान को अणसर घर को जगन्नाथ मंदिर जगमोहन रे चंदन अर्गली निकट में एक स्थान नियंती यही समय महाप्रभु देहरे चुआ कर्पूर कस्तूरी चंदन लेपन करा सह पारंपरिक उपचार करा जाए गुप्त सेवा महाप्रभुंकर वर्तमान अणसर गृह को केवल दैता सेवक माने अर्थात विश्वावसुंकर वंशधर माने सेवा कार्य करती वर्षक 12 मास मध्यरु पति महापात्र एकायक सेवक बा ब्राह्मण मानक सेवा 11 मास एवं दैतापति मानकर सेवा देखिबे तांकर रही थाए एपटे देखिबे रथयात्रा समय तांकर सेवा अछि अनवसर समय कारण त्रयोदशी ठारू ज्येष्ठ मास त्रयोदशी ठारू नीलाद्रि विजय पर्यंत तांकर सेवा करने सहित 365 दिन मध्य सेवा तांकर रही एमिति सेवा अछि सुदोस्वार सेवा महाप्रभुंकर से भी मध्य करती गुप्त नीति मध्य करती तेणु स्वतंत्र भाव में अणसर नीति वर्तमान महाप्रभुंकर संपन्न श्रीमंदिर रे श्रीअंग फिटा नीति दैतापति सेवकों द्वारा संपन्न होता है अणसर नीति श्रीअंग फिटा स्नान मंडप रे स्नान द्वारा कारण महाप्रभु पाट वस्त्र पिंधि वस्त्र आदि पिंधि स्नान हुए से ओदा पाट वस्त्र को अणसर गृह उलागी करा जाए जहाँ को सेमाने कहते दैतापति सेवक माने कहते ये हूँ महाप्रभुंकर श्रीअंग फिटा यही समय रे दारू रूप को कराल रूप करा जाए श्रीअंग फिटा और कराल हेउछि श्रीअंग निरापत्ता पई एक प्रतिषेधक व्यवस्था आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदर चतुर्थी विग्रह गुड़िंकर
सेवा मध्य ठाकुर मानकर अंगर वस्त्र को स्वतंत्र भाव में गुप्त सेवा से करिथांती। श्रीअंगरे लगी कस्तूरी झुणा चुआ चंदन ये सब प्रभु शरीर रही था। स्वतंत्र भाव में गुप्त सेवा महाप्रभु प्रकाश योग्य अवर्णनीय से सेवा को से कहा प्रकाश कर कौन अनवसर गृह कौन चली क्या से प्रकाश करें कारण महाप्रभुंकर किछि गुप्त सेवा थाए दैनंदिन सेवा सामयिक सेवा पर्वपर्वाणी सेवा गुप्त सेवा ये सब मान श्रीमंदिर प्रचलित रही था। भक्त माने पताका जितेबाला लगी दर्शन करते विभिन्न प्रकार आमे देखुचे भजन स्तुति एवं विभिन्न प्रकार श्लोक आदि पुस्तक को धरी धर्म भावना जागृत करिवा धार्मिक चिंता मन को आसीबा ये सब ईश्वरंकर कृपा ही थाए। तेणु ये अनवसर समय कथा को लेकिन अनेक कथा रही थाए। अनवसर समय कथा को लेकिन अनेक वर्णना रही अलारनाथ को लेकिन अनेक वर्णना रही। तेणु परम तांत्रिक गोटे अणसर समय अलारनाथ को दर्शन करिवार किंवदंती अच्छी। परम तांत्रिक बाबा अलबंदा आचार्य नामक जने तंत्र साधक से महाप्रभु को दर्शन पाई श्रीमंदिर को आसी समय अणसर तो कई दर्शन करें ना। तेणु अणसर हेतु दर्शन पारी नथिले से तांत्रिक निजर तंत्र साधना प्रयोग करी से एक भ्रमर रूप में अणसर गृह को प्रवेश करते। कारण साधक माने से तांकर सिद्धि द्वारा तांकर विद्या साधना द्वारा से सब किछि करि पारंती। से तांत्रिक कौन कले साधना तंत्र साधक तांकर तंत्र प्रयोग करी एक भ्रमर रूप में अणसर गृह को प्रवेश करते। अणसर गृह रे एक अष्टदल पद्म देखिकी अलबंदा पद्म उपरे बसिबा को उद्यम करबा बेले पद्मर पाखुड़ा गुड़िक जड़े जड़े सुंदरी नारी रे परिणत हुई भ्रमर को उपहास करते। ये एक किंवदंती अलारनाथ दर्शन को नहीं। फल अलबंदा आचार्य अपमान पूर्वक जगन्नाथ दर्शन वंचित हुई समुद्र प्राण विसर्जन निमंते चिंता कले सिद्धांत नहीं गले उद्यम हुए हठात एक विराट काय मर्कट तांको सम्मुख में लंफ प्रदान करिकी दक्षिण दिग को गति करिथला। या भगवान को निर्देश भावी से दक्षिणाभिमुखी दिगरे यात्रा करी ब्रह्मगिरिस्थ अलारनाथ पीठे पहुंची सेठारे शिलारूपी भगवान विष्णु विग्रह को दर्शन करी भाव विहलित होते किए जे जीवन जो तंत्र साधक सी जाई अलारनाथ को दर्शन कर पीठे भाव विहलित होती। सेठारु अलविदांक प्रभु बा नाथ अलविंदा नाथ पर अपरवंश ही अलारनाथ नाम एमती होती। ये अलारनाथ को लेकिन अनेक किंवदंती रही था जनश्रुति भी मध्य रही था। कारण 15 दिन धरी श्रीमंदिर में महाप्रभुंकर दर्शन बंद रुए कौन से देवता माने भी दर्शन करिवार सौभाग्य लाभ करते ना। तेणु यही समय भक्त माने श्रीजीव मान को दर्शन करि न पारि ब्रह्मगिरी अलारनाथ को दर्शन करी पुण्य अर्जन करिथांती। श्रीमंदिर रत्न सिंहासन से जीव को दर्शन करिवार जतिक पुण्य मिले अणसर समय अलारनाथ को दर्शन करे सेतिक पुण्य मिले बोली प्रभात रही। कारण भगवान अलारनाथ होचंदे प्रभु विष्णुंकर चलंती प्रतिभा एवं जो अलारनाथ को दर्शन करबा पई चैतन्य महाप्रभु मध्य ब्रह्मगिरी को जाइचंती एवं तांका मनरे मध्य अछि प्रकृतर शिला ब्रह्मंकर दर्शन कले दारु ब्रह्मंकर दर्शनर अनुभव हुए बा दारु ब्रह्मंकर पुण्य मिले। चैतन्य महाप्रभु मध्य जाई सेठी जेतेबेले अलारनाथ को दर्शन करिसंती से भाव विहलित हो जाइचंती। मनरे जो शंका मनरे जो प्रश्न मनरे जो अनेक द्वंद्व सब समाधान हो जाइछि
चैतन्य महाप्रभु लंब ही पड़ जाइछन्ति षष्ठांग प्रणाम प्रणिपात करुछन्ति सेई शिला ब्रह्म को अलारनाथ को चैतन्य महाप्रभु जो साष्टांग प्रणिपात प्रणाम करिसेंति तार स्मारक स्वरूप एबे भी से चिन्ह अलारनाथंकर दर्शन गले चैतन्य महाप्रभुंकर से शिलार प्रणाम करिथिबा साष्टांग प्रणाम करिथिबा स्थान को मध्य भक्त माने स्पर्श करी पुण्य अर्जन करती दर्शन मध्य करती किंतु अलारनाथ भगवान कर दर्शन निश्चित पुण्य पद रही था। 15 दिन कहा जाए नीलगिरी ब्रह्मगिरी यात्रा नीलगिरी ब्रह्मगिरी यात्रा से ब्रह्मगिरी रे अलारनाथंकर दर्शन 15 दिन श्रीक्षेत्र हो जाए 15 दिन श्रीक्षेत्र हो जाए एवं महाप्रभुंकर अलारनाथंकर प्रत्येक ब्रह्म मुहूर्त द्वार फिटा ठारू आरंभ करी प्रभुंकर द्वार पहड़ पर्यंत समस्त नीति हुए। प्रभात रे महाप्रभु अलारनाथंकर दिव्य मंगल आरती मध्य संपन्न हुए। मन प्राण आत्मा परम आनंद रे परिपूर्ण हो जाए। भक्त मान जानते मंगल आरती दर्शन करने पाई जो माने प्रत्यह प्रतिदिन दारू ब्रह्मंकर मंगल आरती दर्शन करने को जाती 15 दिन सी जेते कष्ट हो अलारनाथंकर मंगल आरती दर्शन करने को जाती कर्णिका निकट में पहुंची गले महाप्रभुंकर चुनरा सेवक प्रणाम करी तांकर सेवा को संपन्न करवा हेबे तेणु सी भी मध्य पहुंची तांकर ब्रह्मदंड को नीलचक्रु उलागी करुछंती। नीलचक्र रे बंधा जाइतिबा दंड अक्षय दंड बा ब्रह्मदंड आसीबा परे पताका तांकर हस्तस्पर्श पाई थाए एवं कारण दंडर सर्वाग्रे पताका बंधा जाइछंती। जो दंडटी आमे देखुचे ब्रह्मदंड अक्षय दंड सर्वाग्रे तांकर पताका टिकी बंधा जाइछंती महाप्रभुंकर पतित पावन पताका। काली तला हलदिया रंग आज भी मध्य हलदिया रंगर पताका बंधा जीव कारण पताका बंधा जो पताका मान प्रदान करती भक्त माने तांकर मानसिक करी कहा जाए प्रभु जगन्नाथ को जदि गोटे पताका मानसिक करिवे अविलंबे से कार्यटी संपन्न हो जाता है। जे जो कार्य को नहीं प्रभु को जाची था ये जाचिबा पताका ये जो कहा जाए मानसिक पताका बा जाचंगा पताका भगवान को पाई जाचिबार अनेक भक्त अनेक माध्यम दे जाचे कि पताका को जाचे कि 22 पाहचरे 22टी नड़िया भांगी ए प्रकार मानसिक करि थाए कि कल्पबटरे डोरी बांधिकी तार मानसिक करि थाए कि प्रभुंकर आनंद बजार रे महाप्रसाद को नहीं मनर संकल्प नहीं थाए मानसिक करि थाए किए पुणी श्रीक्षेत्र को आसी केवल दर्शन करिवो ए मानसिकता करि थाए प्रभु मोरे कार्यटी हेले मु जीवी श्रीक्षेत्र जीवी आपन को दर्शन करिवो केवल दर्शन रे मानसिक बांधि थाए। एठी गोड़ी रे बंधा जाए मानसिक एठी पताकार बंधा जाए मानसिक एठी मन रे जाए बंधा जाए मानसिक एठी चिंता रे मध्य मानसिक करा जाए। तेणु समस्त मानसिक को पूर्ण करती किए ना प्रभु जो माने भी आसंती प्रभु उद्देश्य रे वर्तमान प्रभुंकर अनवसर हेले मध्य प्रतिदिन नीति बंद होई न थाए। असुस्थ थिले मध्य महाप्रभुंकर प्रत्येक नीति प्रतिदिन नीति हुए कहीं ना भक्तमान मु असुस्थ रहिले मध्य मोर भक्त दर्शन रु वंचित न रुहंतु सेति व्यवस्था महाप्रभु करिसेंति पटिदियंकर व्यवस्था सेति शिला ब्रह्मर दर्शनर व्यवस्था महाप्रभु ही करिसेंति अल्लाहनाथंकर दर्शनर व्यवस्था से महाप्रभु को नहीं कारण मु भी मते 15 दिन जे न देखिब से 15 दिन अल्लाहनाथ को दर्शन कर एक महाप्रभुंकर मुख निश्रुत वाणी हलदिया रंगर पताका को देखीदेले जितेबाला भक्त मैंने आउ कौन मनर अवस्था देखु समस्त आपे आपे
हाथ उठी जाए महाप्रभु को पाई, प्रभु ये भवसागर उद्धार ही करती जदि से होती आपण, किए जदि उद्धार करे भवसागर, किए जदि उद्धार करे समस्त सकल कष्ट सी होती आपण। तेणु सिंहद्वार सम्मुख में महाप्रभुंकर भक्त से महाप्रभु से तांकर जय जयकार करुचंती, प्रभुंकर नाम को धरी परम आनंद परम तृप्ति लाभ करी परम पुण्य अर्जन करुचंती। पवित्र ये मास अनवसर समय रे प्रभु क्षेत्र को आसीबा, प्रभु आरोग्य कामना करिबा प्रत्येक भक्तंकर ये भावना रही थाए। हलदिया रंगर पताका फरफर ही अनंत आकाश रे उड़ीबा भितरे चुनरा सेवक तांकर मेलाणी नेबे। आमे आसतु परमशास्त्र भागवत निश्चित भाव में प्रत्यह प्रतिदिन परमशास्त्र भागवत श्रवण करिवार सौभाग्य ही आपण पाते। आज नवम स्कंद तृतीय अध्याय जानिबे। च्यवन ऋषि सुकन्या उपाख्यान और सर्जाति वंश चरित। शुक कहले, हे अभिमन्यु सुत, एबे तुमको मनुपुत्र सर्जाति कथा कहूची शुण। सर्जाति पुत्री सुकन्या थिला अत्यंत रूपवती। दिने से कन्या पिता सह वन मध्य प्रवेश कला। से बल भृगुंक सुत व्यचन तपसाधन करुते। भृगुंकर सुत च्यवन तपसाधन करुते। कठोर तपस्या फल देहरे अस्थि आउ चर्म छड़ा किछि नथिला। वाल्मीकि कीट माने माटी द्वारा तांकर मुख आच्छादन करथिले। सेही कूद मध्यरु तांको आखि जोड़िक चिकिमिकी करुथाए। सुकन्या कौतूहल बसत गछरु गोटे कंटा आनी से आखि दुईटू क्षताक्त करदेले। रक्तधार बहिबा द्वारा माटी धोई होई च्यवनक शरीर दृश्य मान हैला। राजांक सह जेते लोक थिले ए अपराध फल समस्तंकर मूत्र द्वारा रुद्धि होई गला। सुकन्या सहित समस्ते यंत्रणा चित्कार कले। सज्जाति समस्त विषय जानी च्यवनक पासरे क्षमा प्रार्थना कले। आ कहले, ऋषिवर मोर ए कन्या तुमर घरणी हो, मु सत्य सत्य त्रिबाल सत्य करी कहूची। च्यवन कहले, हे राजा, जदि एकथा सत्य तेबे समस्त मूत्र द्वार खोली जाऊ। राजा सज्जाति कन्या दान करी प्रसाद अभिमुखे प्रस्थान कले। सुकन्या मन देई च्यवनक सेवा करुथाए। दिन अश्विनी कुमार दुई भाई पहुँचले च्यवनक आश्रम में। च्यवन सेमानकु यथाविधि मान्य देई कहले, हे दैव, हे देव दैव्य, राजा सज्जाति युवती कन्या को मो सहित विवाह दे चलीगले। मोर वृद्ध बयस, अंततः सुकन्यार सुख पाई मते यौवन प्रदान करंतु, मु आपन को यज्ञ भाग देवी। अश्विनी कुमार द्वय सिद्ध हृदय च्यवन को स्नान करई जीव शरीर प्रदान कले। सज्जादि आश्रम में कहूँ समस्त कथा जानी आनंदित हेले एवं ज्वाई और कन्या को नहीं यज्ञ आरंभ कले। च्यवन को निमंत्रण में पहुँचले अश्विनी कुमार द्वय। इंद्र यार घोर विरोध करी वज्र करिबारु च्यवन स्तंभन मंत्र रे वज्र को निर्बल करदेले। से दिनटार अश्विनी कुमार द्वय यज्ञ भाग पाइले। ए यज्ञ फल सज्जातिर पुत्र जात हेले। सेमाने हेले उत्तान, बरही, अकर्त, भूरिसेन। एबे अकर्त कथा कहूची शुण। अकर्तंकर पुत्र नाम रेवत। से समुद्र मध्य निर्माण कला तार प्रसाद कुशस्थली। से थिला विष्णु भक्त। तांकर हेला 100 पुत्र। 100 पुओंक मध्यरे सबुठार बड़ थिला कुकुद्मी। ता झीर नाम रेवती। से झील को नहीं स्वर्गपुर में पहुँची ब्रह्मा को गुहारी करी कहला, हे ब्रह्मदेव, मोर कन्या को मु काहा को देवी। ब्रह्मा कहले, तुम्हें मर्त्य जाई बलभद्र सह ए कन्या को विवाह कर दियो। कुकुद्मी कन्या को बलभद्र सह विवाह दे शुद्ध मन में पहुँचले बद्रिकाश्रम। सुंदर अध्याय परमशास्त्र भागवत नवम स्कंद तृतीय अध्याय आसंतु श्रवण करवा। सुनाम धन्य सुखंडी गायिका स्वर सेविका डॉक्टर नमिता अग्रवाल मामकर भावपूर्ण कंठरू। जय जय श्री जगन्नाथ।